Mind is one of the most wonderful creation of nature. If I tell you about the mind, it has two parts. One left part is logical part, right part is creative part. In logical part, there is step-by-step thinking, logical reasoning, logic is there. On the right part, it is creative. There are dreams, imaginations, visualization, colors and creations. Mind has 1 billion neurons. Normal human beings use only 10% of the power of the mind. A normal human being can learn 14 languages and 4 encyclopedias. Our mind can relate and can remember a lot of things. The basic rule is law of association. What is law of association? Whatever is already stored in your mind should be related with the new information you want to remember in your mind. For that, you can use a very good technique that is called as IBMC technique. I means involve for yourself. B, C on the big parda, on the back. M for moving. C for colorful. Why we are able to remember all the movies? Because we are involved there. We see on the big parda and they are moving, characters are moving and they are colorful. There are 5-6 points more you can use to remember these things. First of all, there should be a wild thinking. Second is that you create a funny association. Third is that you keep the things moving. It should be colorful. And it should be weird. What is the meaning of weird? Weird means jitni ajeeb cheez hogi, utni yaad hogi. And you can use your 5 senses also. What are the 5 senses? You can see, you can smell, you can taste, you can hear, you can feel. The greatest gift of human being from the God is your mind. Mind, the language of mind is imagination and visualization. What is imagination? You know how many eyes you have? 4 eyes. Normally people say they have 2 eyes. How many ears you have? Not 2, 4 ears. That I can prove you right now wherever you are sitting. You can see the things beyond your room or beyond the area where you are sitting. Example, you imagine about a lion. Once you start imagining, the picture will start coming in the mind, which is not in front of you. It means there are 2 eyes which are in front of you and 2 eyes are on the mind, which we can call mind eyes. Similarly, we have not only 2 ears, we have 4 ears. The people who create songs, from where they hear the song, for the first time, who listen to the song, that is mind ears. We have to understand the nature of the mind. You know, there are mathematical words. Mathematical words are difficult to remember, but easy is to remember names. If I say I have to remember 13 names or 25 names, it is easy to remember a story than the names. And if I say you have to remember a story of 100 pages, or you can remember movie, so you can remember movie better than the story. It means there is an order. Movies, number 1, the maximum retention is there. Second, stories. Third, names. Fourth, mathematical words. So now question arises of why we are able to remember the movies in a better way. Reason is that wherever you use 5 senses, you can remember a lot of things with the help of 5 senses. If you are using more than 3 senses together, you can remember anything. Example, when you are watching the movies, you are looking at the movie, you are listening to dialogues, you are involved there. That is why retention is 85%. There is a rule, I read, I forget, I see, I remember. The visual memory is much greater than the mathematical and other memory. Some countries and their parliaments. There are a lot of information in this world which we want to learn. We have to remember names, country, capitals, areas, parliament, weather, so much. But you know, you have seen many times a small child of 11 years, they say it is Chanakya, and or some wonder boy. How they learn? From the day one they start developing the technique of memorization,
by visualization. Mind has no limit. But certain techniques which people use all over the world, out of that I am going to discuss some techniques. Now, how to remember countries and parliaments. You know, there is a country called as Afghanistan. Its name of the parliament is Shura. How you will remember it? कहते हैं इसको, देखो इसको कहते हैं break the word and connect with the parliament. You know, you are going to get the question in which there will be 4 choices. 1 will be right, 3 will be wrong. So there will be written country, this Afghanistan. Out of this, which is the parliament of Afghanistan? So parliament of Afghanistan is Shura. How you will remember? कहते हैं उफ गाना ना गा इस स्थान पे. मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया. उफ गाना स्थान, उफ गाना ना के स्थान पे शोर हो रहा है, दोनों को लिंक कर दिया. वहां पे अफगानिस्तान लिखा होगा, आपको ये सुनाई, आप ये पढ़ रहे होंगे, उफ गाना ना का स्थान पे शोर हो रहा है. शोरा विल बी रिटन इन द choices and you can write and you will get marks. This is called as linking method and breaking of words using together. Similarly, there is a country called as Denmark. इसकी पार्लियामेंट का नाम है फोकटिंग. अब जब भी कोई वर्ड आएगा, आपने क्या करना है, इमेजिन करना है कि तुम्हारे माइंड में ऐसा कोई वर्ड है. डेन शेर की गुफा, मार्क निशान, फोक हम यूज करते हैं खाने में. तो हम अब ऐसी छोटी स्टोरी बनाई हमने. एक इंसान घूम रहा था जंगल में, विजुलाइज करो, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, उसको एक डैम नजर आई, उसने लकड़ी का एक फोक बनाया और उसने क्या किया, वहां पे मार्क किया और अंदर से जलेबियां निकाल के खाई. 2 दिन बाद खाना मिला था, उसके पेट में टिंग टिंग की आवाजें आ रही थी. डेन मार्क फोक टिंग. सिमिलरली जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है बंदस्टैग. याद कैसे करोगे? जर्म्स मैनी जर्म्स ऑन द बंद. मैं एक दुकान में गया बंद बर्गर बनाने के लिए, बंद लेने गया तो देयर वाज मैनी जर्म्स ऑन द बंद. मैंने उस पे स्टैग लगाया और दुकानदार को बोला, भाई ये देख, जिसमें मैंने स्टैग लगाया उसमें कितने जर्म्स हैं. तो जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है बंद स्टैग. सिमिलरली ईरान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस. याद कैसे किया, मैंने ब्रेक कर दिया. आई रैन, उसको एक इमेजिन करके एक पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया. मैं भाग रहा हूं और मेरे पीछे मछलीज भाग रही हैं. मछलीज से मजलिस. ईरान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस. इसी तरह से इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट. याद कैसे किया, उन्होंने कहा भाई इस रेल के अंदर नेस्ट घूम रहे हैं. नेस्ट होते हैं जो पक्षी के घोंसले होते हैं. इस रेल में नेस्ट घूम रहे हैं, अपने घर ले जाओ और पक्षियों को खिलाओ पिलाओ, सो दैट बर्ड शुड इंक्रीज. बर्ड अब कम होते जा रहे हैं. नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ टू मेमोराइज मिनरल्स. कोल मिलता है झरिया रानीगंज में. ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है. याद कैसे करेंगे हम? एक इसको इमेजिन कर रहे हैं, एक अजीब सी स्टोरी. एक जलता हुआ कोयला रानी मुखर्जी के सर पे रख दिया शाहरुख खान ने. रानी गंजी होगी और झाड़ियों में जाके छुप गई. तो ये याद कैसे होगा? कोल कहां मिलता है? झरिया रानीगंज में. अब स्टील मिलता है राव केला में. याद कैसे किया? नरसिम्हा राव मीन्स नरसिम्हा राव केला खा रहा है स्टील का बना हुआ, उसके दांत गिरने शुरू हो गए. तो उसने लोगों को पूछा, भाई ये क्या लाए मेरे लिए? कहते सर ये तो हम गिफ्ट लाए थे, खाने के लिए थोड़ी था, ये तो स्टील का था. तो स्टील राव केला. सिमिलरली ब्रास यूटेंसिल्स कहां मिलते हैं? मुरादाबाद में. इमेजिन करो, एक सारे लोग इकट्ठे होके ब्रास के यूटेंसिल जो ब्लैक कलर के होते हैं वो पकड़े हुए हैं उल्टे और बोल रहे हैं मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद. सिमिलरली सीमेंट मिलता है कटनी में. याद कैसे करोगे? मेरी नी कट गई और डॉक्टर उस पे सीमेंट लगा रहा है. पक्का जोड़, ये अंबुजा का जोड़ है. तो सीमेंट कहां मिलता है? कटनी में. HMT वॉचेस मिलती है पिंजौर में. याद कैसे करोगे? इमेजिन करो, जहां घड़ियां बननी है छोटी वाली, लोग जो हम चाह रहे हैं पिन जोड़. पिंजौर मींस पिन जोड़ घड़ी बना, पिन जोड़ घड़ी बना. HMT वॉचेस कहां मिलती है? पिंजौर में. तो अब आज हम लर्न करेंगे वोकैबुलरी कैसे लर्न करनी है. अब देखो, वोकैबुलरी इज ए प्रॉब्लम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. हर बंदे को प्रॉब्लम है वोकैबुलरी में. अब आपका CUT का एग्जाम होगा, कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें वोकैबुलरी तो आएगी. सिनोनिम्स भी आएंगे, एंटोनिम्स भी आएंगे. अब ऐसे अगर आप 4 वर्ड भी एक्स्ट्रा ठीक कर देते हो तो यू विल गेट 16 मार्क एक्स्ट्रा. तो आप लोगों को वोकैबुलरी लर्न करनी है. एक बार टेक्निक क्या यूज करनी है, देखो कोई भी वर्ड आपको मिला उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो. दूसरी बात है, आप क्या करोगे, वर्ड को ब्रेक करो या उसका कीवर्ड ढूंढो. ब्रेक करके या उसका कीवर्ड ढूंढो. तो कीवर्ड ढूंढ के उसको उसके मीनिंग से जोड़ दो. अगर आप इस तरीके से यूज करोगे
तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। वर्ड लिया, मीनिंग से जोड़ दिया। जोड़ने के लिए या तो उसी को कीवर्ड बना लो जो जिसे जोड़ना है उसके साथ, या उसको ब्रेक करके उसके साथ जोड़ दो। दैट इज द टेक्निक वी यूज, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी मेथड ऑफ वोकैबुलरी। उसके मैं कुछ एग्जांपल लूंगा। जैसे एग्जांपल है, एक वर्ड है, बड़ा सिंपल वर्ड है, अपुलेंस। ये एग्जाम में बहुत आता है। इसका मीनिंग है रिचनेस। हमने कैसे याद किया? ओपल लेंसर, ओपल लेंसर, जिनके पास ओपल और लेंसर कार है वो बड़े रिच हैं। फिर एक वर्ड है इंडिजेंस। इंडिजेंस का मतलब होता है पॉवर्टी। इसका रिवर्स हो गया। कई बार ये इंटोनिम्स में आएगा, एक वर्ड दिया होगा उसका रिवर्स पूछा जाएगा, या सिनोनिम्स में आ जाएंगे दोनों अलग वर्ड, ये भी होता है। तो आप कैसे याद करेंगे? इंडिजेंस का मतलब है पॉवर्टी। याद कैसे किया? जिनके पास इंडिका और जेन कार है, इसको डिवाइड कर दो, इंडिका जेन, वो पुअर है, एज कंपेयर टू जिनके पास ओपल लेंसर है वो रिच है। तो ये इसके एंटोनिम्स रिवर्स हो गए। फिर एक वर्ड आता है, एग्जाम में बहुत आता है, मैकबर। मैकबर का मतलब होता है हॉरिबल। याद कैसे करोगे? मैं कवर में, और वहां गाना गा रहे हैं, जुड़े लें, हॉरिबल, मैं कवर में, इमेजिन करो, तो हॉरिबल। अगला वर्ड है श्रीयू, इरिटेबल लेडी। ये याद कैसे करेंगे? श्रीयू को मतलब शुरू हो जाती है, जब भी जाता हूं वो देख के मुझे शुरू हो जाती है इरिटेट करना वो लेडी। तो श्रीयू का मतलब क्या है? इरिटेबल लेडी। एक वर्ड है स्निकर, बड़ा एग्जाम में आता है, स्निकर, लाफिंग सुप्रेसिंगली। याद कैसे किया? सर केम इन निकर इन द क्लास, सारे बच्चे हंस रहे हैं मुंह दिया करके। अब उसी तरह से आपने क्या करना है, जैसे मैं पीछे दिखा रहा हूं आपको, इमेजिन कर सकते हैं उस वर्ड को उसके मीनिंग से कोरिलेट कर सकते हैं आप। दिस इज कॉल्ड एज वोकैबुलरी मेथड ऑफ मेमोरी। सिमिलरली वर्ड है कैपेशियस। इसका मीनिंग होता है स्पेशियस, ह्यूज। याद कैसे करोगे? एक, दिस कैप इज वेरी स्पेशियस, ये कैप बड़ी स्पेशियस है। सिमिलरली वर्ड है डिकैंट। डिकैंट का मीनिंग होता है डिस्कस इन डिटेल। अब डिकैंट के अंदर हमने एक तो निकाल दिया एंट, ये एंट चीटियां। चीटी अपनी शादी के बारे में डिस्कस कर रही है कि तू चीनी लेके आई हो, मैं ये लेके आऊंगी, मैं वो लेके आऊंगी। सिमिलरली वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मीनिंग होता है स्टेबल। याद कैसे किया? इम्यूटेबल के अंदर एक वर्ड आ रहा है टेबल। दिस टेबल इज वेरी स्टेबल। In this way you can imagine the word, you can break the word and connect with the meaning. अब एक वर्ड एग्जाम में आता है chagrin. Chagrin का मतलब होता है feeling disappointing, appointment, feeling disappointed due to mistake. तो वो ये एक बंदा बड़ा disappoint फील कर रहा था। कह रहे क्या हुआ? कह रहे फर्स्ट टाइम मैं मिलने जा रहा था, डेट दी हुई थी किसी को, और मेरी पैंट में चाय गिर गई, चाय गिर गई, और he is feeling disappointed. तो चैगरिन का मीनिंग है फीलिंग डिसअपॉइंटेड। दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने। फिर वर्ड है करीन। करीन होता है मटक मटक के चलना। करीन से लो करीना कपूर मटक मटक के चल रही है। फिर है कैम्ब्रिकल, ये इसका मीनिंग होता है इमेजिनरी, अनरियल। CHI का में शी बना दिया हमने। मैरी मी कल, मुंगेरी लाल सपने ले रहा है, मुंगेरी लाल, शी विल मैरी मी कल इन हिज इमेजिनेशन। तो दैट इज अनरियल, इमेजिनरी। तो कैम्ब्रिकल का मीनिंग क्या है? इमेजिनरी, अनरियल। वर्ड इज करी। करी का मतलब होता है सीकिंग फेवर। तो करी को याद कैसे करेंगे? कहता है वो अपने बॉस को चिकन करी खिला रहा है उसकी फेवर लेने के लिए। करी को कैसे बना दिया? इमेजिनेशन, चिकन करी बना रहा है फेवर लेने के लिए। अब वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मींस वाइज, स्किल्ड। याद कैसे किया? एस्ट्यूट को हमने ब्रेक कर दिया, A फॉर एक, S फॉर साइंस, ट्यूट मींस ट्यूटर। एक साइंस का ट्यूटर बड़ा स्किल्ड था। फिर एक वर्ड है एबेस। एबेस होता है किसी को डाउन करना, लोअर करना, टू लोअर इन पोजीशन और डिग्रेड समबॉडी। याद कैसे किया? एक बेसमेंट बड़ी लोअर होती है, ए बेसमेंट इज वेरी लोअर, जगह से लोअर होती है, तो ए बेस मींस टू लोअर समबॉडी। कैडेंस होता है रिदम, डांस विद द रिदम। तो हमने इसको क्या बना दिया? कैट डांस कर रही है रिदम में, कैट। अब देख रहे हैं कैट पीछे डांस कर रही है रिदम में। फिर एक वर्ड है कैनवेस। आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, कैनवेसिंग हो रही है। कैनवेसिंग मींस आस्किंग फॉर वोट। तो याद कैसे करोगे? पीछे नेताजी गधे पे चढ़ के कैन लेके लोगों से वोट मांग रहे हैं, मीन आस्किंग फॉर वोट।